A very good morning to all the participants of the 2 week online summer internship program of 2020 and our module number 2, which is the introduction to solar system and solar photovoltaic modeling using PVC software and the Simulink. Here I Saurabh Kumar Rajput am covering the introduction part of the solar system. So this is the lecture number 6, day number 6, and today we will cover the solar economics part, which is the very much important while we are designing a solar rooftop photovoltaic system. What is economic analysis? Economic analysis of any system, what it says, economic of any system is based on the cost benefit analysis. Cost means the whatever we are paying for the construction and development and installation of the any system is the cost of the system. Benefit means whatever we are taking from system, what benefit we are taking from the system. It may be in the part of the monetary terms, or it may be in the part of some other non-monetary terms. It will be the benefit of the system. And when we compare the cost and benefit with each other, then the actual economics comes in and comes into the picture. Definitely we know that if the cost will be less than the benefit, it means in simple words, if I say, if the benefit are higher than the cost involved, then the system will be a economical system. But if the benefits are the less and the cost is high, then system will not be economical system. So come to the cost of the system. What is the cost of system? Cost of system involve the initial cost. First is the initial cost. Initial cost means the capital cost at time t is equal to 0. Why it is mentioned here at time t is equal to 0? Time t is equal to 0 means if the plant is going to be start from today, if the system is going to start from the very first day today, then it will be considered as time t is equal to 0. After completion of 1 year, time will be considered as t is equal to 1. After completion of second year, the time will be considered as time t is equal to 2. So if the plant is going to start from today, it means time t is equal to 0. And at time t is equal to 0, the cost will be the initial cost, and initial cost means the cost of purchase, cost of installation, and cost of the training which is given to the user. When the plant is going to the start, we have not taken any benefit from the system side. Whatever we have paid, that will come under the initial cost. It will be the purchase, installation, and the training given to the users. Second point is the cost of the operation. When system start operating, then the operation cost come into the pictures. Then point number 3 is the cost of the maintenance and the replacement of the item. Definitely, if the system is working, then definitely the maintenance of the system will be required. Time to time required maintenance will be provided to the systems, and the cost involved in the maintenance will be the cost of maintenance, as well as there will be a replacement cost. If the system is working, if any component got damaged, if any component is not working, it require its replacement. It will be replaced by a newer equipment. Then definitely these costs and will be the replacement cost. And in the last point, the incremental cost, property and tax will cover, will office should also be covered, as I mentioned here at the point number 4. Because if we are installing a system, and system is a land is we hire a land for the installation of that system, then definitely the property cost will come into the picture, and tax will also come into the picture. So all these terms collectively are known as the total cost of the system which we paid for the system. Now come to the benefit which we get from the system are of two types. Where we can get two types of benefit from the system. First will be the tangible benefits, and second will be the intangible benefit. Tangible benefits can be converted into the monetary terms, but intangible benefits cannot be converted into the monetary terms. Very simple. For example, if we are using a renewable energy system for generation of the electricity, then definitely there will be two benefit. If we are using a renewable
renewable energy system, definitely we will getting a benefit in terms of the electricity bill saving. And second benefit will be the on the part of the environment, making the environment pollution free. So the electricity bill saving is the tangible benefit, because it is it is possible to convert it into the monetary terms. But the whatever we are providing to the in terms of the making the environment pollution free, this will be considered it as the intangible benefit, because it cannot be converted into the part of the monetary benefits. So it is mentioned here with what I have told, it is mentioned here in our slide. Now come to the economics of the solar system. As we are talking about the solar system, our module is the solar based module. So today we will discuss about the solar system economics in details. Definitely, if we are talking about the economics of solar system, so it means the economics of solar system will involve the benefit analysis, cost analysis, and the comparison of the benefit and cost. And then we will find whether the system is economical system, or the system is not economical. First is the costing cost part. Economics of solar system is based on the cost benefit analysis. The cost of the solar system are similarly here 4 points are involved. First is the capital cost. As I have already told, it is the cost of the system installation of the system, and initial investment of system. So the capital cost of the system of solar, particularly the solar system, is very high, because what are the components needed for the installation of a solar system? We need solar modules, very costly. Number of solar modules will be required as per the to meet the requirement of the load. They will be connected in series and parallel. The solar module cost is very high, and electrical efficiency is low. It means the system will be costly. Then wires will be required for to connect these modules in series and parallel. Then the cost will increase. Then we know that the solar system is producing the electricity in the form of AC, but in our offices, in our home, energy we need in the form of the AC. So a device will be required to convert the DC produced by the solar system into the AC, which is required by the load side. So this for this conversion we will use a inverter system. Inverter again, it is a costly device. The initial cost of system will get increased. Then if solar system can provide the energy in the time of in the daytime only, and in the evening and in the night time it is not able to produce the energy, so we will need a storage system. Battery storage system will be required. So because of the involvement of the battery for to operate the system and at the night times, or the cloudy season time, so this will also increase the cost of system. So we can say that the capital cost, installation cost of the system, the initial cost of system solar system is definitely very high. It is no doubt then the capital cost system is going to be very high if we are installing the solar system. But there is a advantageous part of the solar system, which comes under the point number 2 and point number 3. The cost of operation of system is low in case of solar system, as well as the repair and maintenance cost of the system is very low. If you have installed a solar system grid connected or without grid connected at the rooftop of your building, then the first component is the solar modules. Solar module life is minimum 25 year, it may be 30 to 35 year. So solar module do not want any replacement after 1 month or 2 months or 3 months or 1 year. If you install the solar module, then definitely it will be replaced after the completion of its life of minimum 25 years. So first component which you use the solar module, so it is not going to replace. It means this cost will not be involved in the solar system. So if we talk about the maintenance of the module, solar module need no maintenance. Only and only the one maintenance is required, which is the डस्टिंग इफेक्ट जो सोलर मॉड्यूल पे होता है, जो डस्ट जम जाती है उसको हम कपड़े से हमें साफ़ करना होता है। आप किसी एक वर्कर को रखिए, उसको कुछ पेमेंट दीजिए, और उसका काम सिर्फ ये करना है कि मॉर्निंग में से आके आप सोलर मॉड्यूल को की धूल को साफ़ कर देना, जिससे कि प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो पाए, लाइट का इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्जन प्रॉपरली हो पाए।
तो ये होता है आपके पास क्या, मेंटेनेंस कॉस्ट में, ये आपका आपका मेंटेनेंस कॉस्ट। और सोलर मॉड्यूल का मेंटेनेंस ज़ीरो है, बिल्कुल भी नहीं है। और उसमें जब तक आप उसको इंटेंशनली तोड़ने की कोशिश नहीं करें तब तक वो ख़राब नहीं होने वाला है, केवल डस्ट आएगी, उसको हटाना होगा। तो इस पार्ट पे कॉस्ट जो है वो कम है। सेकंड कंपोनेंट विच वी यूज इज द कनेक्शन, टू कनेक्ट द सोलर फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल इन सीरीज एंड पैरेलल वी यूज द वायरिंग। हम अपने घरों में देखते हैं कि वायरिंग जो एक बार लग जाती है वो जल्दी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत उनको नहीं होती है। तो वायरिंग को जल्दी जल्दी आपको चेंज करना नहीं पड़ता है। अच्छे वायर लगाएंगे तो इसलिए उनका मेंटेनेंस भी कम रिक्वायर्ड होगा, उनकी कॉस्ट भी कम होगी। देन थर्ड कंपोनेंट कम एज द बैटरी एज वेल एज इन्वर्टर। इन्वर्टर systems are very efficient system. The life of inverter systems are also very high. Inverter need its replacement, may need their replacement after the 10 or 12 years. So we can say that if the life of the solar system is 10 years, sorry, if the life of the solar system is 25 years, so in the period of 25 years you will need only two times you have to pay the inverter at the where time t is equal to 0 when system is installed. And after the 12 year or 13 year, there will be a need to replace the inverter by a newer inverter, otherwise the inverter will work properly without any problem. And the battery system, whatever the battery we use in our homes, 150 ampere hour battery या 180 ampere hour for battery, for in case of a autonomous rooftop photovoltaic system we can use that battery. And we know that if the properly with the proper maintenance of the battery, it can be used for the 6 to 7 years. It means the बैटरी की कॉस्ट भी बहुत हाई नहीं होने वाली है, बैटरी की मेंटेनेंस कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बहुत हाई नहीं होने वाली है। तो डेफिनेटली इफ लास्ट पॉइंट, कंसीडरिंग द लास्ट पॉइंट, जो भी हमारे पास रूफ टॉप है वहाँ पर जो है प्रॉपर्टी वाला पार्ट है उसे कंसीडर करना पड़ेगा। Otherwise, it is very much clear that the capital investment cost of the system is very high, but the cost of operation, repair and maintenance of the solar system is very low. Now come to the benefit of the solar system. Definitely, as mentioned here, the life of the solar system is 40 years. We are not considering life of the 40 years, but we can consider the life of our solar system is 30 years, 20 in between 25 30 years or safer side. So, considering the benefit, if you installed this rooftop photovoltaic system at the roof of your building, then definitely the first benefit which you will get, that benefit will be the saving in the electricity bills. Whatever the energy the solar system will provide to you to for your domestic load, then you are supposed to not pay the bill for that energy. जितनी एनर्जी सोलर सिस्टम ने बना करके आपके लोड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया, उतनी एनर्जी को आपको ग्रिड की सप्लाई से परचेज़ नहीं करना पड़ेगा। इसलिए ग्रिड की सप्लाई को परचेज़ ना करने की वजह से आपको उतना बिल के पार्ट में उसको बिल को पे कर नहीं करना पड़ेगा। ये आपके लिए पहला बेनिफिट है, सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट है। एंड सेकंड बेनिफिट इज़ द इंटेंजिबल बेनिफिट, जिसको हम मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो क्या है, एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन फ्री बनाने का बेनिफिट, जो कि हमारा सोलर सिस्टम करता है। कहीं न कहीं वो हम आगे चल के अगर हम सब लोग यूज़ करते हैं तो आगे चल के हमारी लाइफ के लिए ही वो अच्छा है, और हम इसको इनटेंजिबल बेनिफिट के पार्ट में कलेक्ट कर सकते हैं। नाउ कम टू द कैश फ्लो डायग्राम। जैसे मैंने कहा कि इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे बेनिफिट होता है, कॉस्ट होता है। कॉस्ट ऑफ सिस्टम इज इन्वॉल्व, बेनिफिट ऑफ सिस्टम इज इन्वॉल्व। बेनिफिट और कॉस्ट को आपस में कंपेयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर सिस्टम के बेनिफिट्स कॉस्ट से ज़्यादा हैं तो सिस्टम इकोनॉमिकल है, अगर सिस्टम के बेनिफिट कॉस्ट से कम हो गए तो सिस्टम इकोनॉमिकल नहीं है। सो व्हाट इज़ द कैश फ्लो डायग्राम? इट इज़ ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कैश फ्लो of a project is used for economic analysis of the system. This representation include the both cost and benefit as shown in the cash flow diagram. कैश फ्लो डायग्राम बेसिकली क्या है? कैश फ्लो डायग्राम जो है वो एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। किस चीज़ का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है? बेनिफिट का और कॉस्ट का। उसको भी हम आगे देखते हैं। This is the y-axis. We have considered a y-axis and we have considered a x-axis. On the y-axis, at the positive y-axis, we will take the benefit part. We will show the benefit part, and on the negative y-axis, we will show the
कॉस्ट पार्ट। बेनिफिट और कॉस्ट को अगर हमें कंपेयर करना है तो हमने क्या कंसीडर किया, हमने कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्सिस पे हम क्या शो करेंगे, बेनिफिट को शो करेंगे। हमने कहा कि बेनिफिट जितने भी हमको मिलते जाएंगे उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में अपवर्ड शो किया जाएगा, और जो कॉस्ट होगा, जो हमारे खर्च हो रहे हैं, उसको हम शो करेंगे कॉस्ट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बेनिफिट के अपोजिट डायरेक्शन में और डाउनवर्ड नेगेटिव डायरेक्शन में। बेनिफिट हुआ तो पॉजिटिव है, हमारे लिए अच्छा है, कॉस्ट है तो वो हमारे जेब से खर्च हो रहा है, उसको नेगेटिव हमने नेगेटिव डायरेक्शन में शो कर दिया। तो ये हमारा बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस हो गई, इसको मैं नाम दिया कैश फ्लो डायग्राम। एक्स एक्सेस जो है, एक्स एक्सेस पे क्या चल रहा है, टाइम चल रहा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्स एक्सेस मीन्स द टाइम एक्सेस। नाउ ऑन द कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर, जब 1 साल कंप्लीट हो गया तो हमने कुछ बेनिफिट मिले, उसको मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। जब 1 साल कंप्लीट हो गया तो हमारे सिस्टम को कुछ कॉस्ट की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे मैंने कहा कि सिस्टम के मेंटेनेंस के लिए आपने किसी वर्कर को रख के उसकी सफाई कराई, ठीक है, वो कॉस्ट बहुत ही कम होगा, लेकिन वो कॉस्ट तो होगा, उसको कुछ ना कुछ तो आपको खर्च करना पड़ रहा है उस वाले पार्ट पे, तो उसको हमने कॉस्ट से रिप्रेजेंट किया और हमने उसको डाउनवर्ड में शो करेंगे। अभी ये बेनिफिट है, बेनिफिट को हमने अपवर्ड डायरेक्शन में शो किया और क्या लिख दिया, उसको B1 से रिप्रेजेंट कर दिया। कॉस्ट वाले पार्ट को डाउनवर्ड शो किया और इसको हमने क्या शो कर दिया, C1 से रिप्रेजेंट कर दिया। तो आफ्टर द completion of the 1 year of the from the installation of the solar system, the benefit which we get from the system are the B1, the cost involved in the system was the C1। नाउ कम टू द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, जब दूसरा साल समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया, एट दैट टाइम द बेनिफिट वी कंसीडर द बेनिफिट एज द B2। सेकेंड ईयर ख़त्म हुआ तो बेनिफिट इज़ B2 एंड द कॉस्ट इन्वॉल्व इन द सिस्टम इज़ द C2। डेफिनेटली ऐसे ही हम थर्ड ईयर की बात करेंगे, बेनिफिट अपवर्ड, कॉस्ट डाउनवर्ड में। और अगर हम सोलर सिस्टम की अगर लाइफ को कंसीडर करें, वी कंसीडर द लाइफ ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज़ 25 ईयर, तो जो लास्ट में जो मैंने शो किया है, दिस इज़ द एट द कंप्लीशन ऑफ द एंड ईयर ऑफ द सिस्टम। इसको मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया बेनिफिट से अपवर्ड में, कॉस्ट से डाउनवर्ड में, और BT लिख दिया। टी मीन्स द टी इज़ द लाइफ ऑफ सिस्टम। इफ़ वी आर कंसीडरिंग द लाइफ ऑफ सिस्टम एज 25 years, so definitely it will be B25। if we are considering the life system as 30, then it will be B30 and C will be C30। तो इसलिए इसको in general हमने कर दिया BT और CT। it means the whatever you are considering the life of system, according to that BT and CT will be defined। now as I explained before, on the completion of the first year, the net benefit will be A1 is equal to B1 minus C1। B1 बेनिफिट और C1 क्या है, कॉस्ट है। इसको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। सिस्टम आपने इन्वॉल्व किया, आपने सिस्टम को लगाया अपने रूफटॉप पे, और आपने देखा कि आपने जब सिस्टम को लगाया तो उसकी हेल्प से आप इलेक्ट्रिसिटी बिल में 1000 रुपीज़ की सेविंग करते हो। 1000 रुपये की सेविंग आपके पर मंथ के बिल में आ जाती है। एक आपने कहा पहले मंथ में 1000, दूसरे मंथ में 1000, तीसरे मंथ में 1000, करते करते जब पूरा साल निकल गया तो आपने अपनी नोटबुक उठाई, अपनी डायरी उठाई और कहा कि बिल की सेविंग अगर हम काउंट करें तो आपने कहा कि 12,000 रुपये की बिल की सेविंग हमको मिल गई, क्योंकि हमने सोलर सिस्टम को अपने घर की बिल्डिंग के रूफ टॉप पर लगवाया था। 12,000 रुपये हमें सेव हो गए। और कॉस्ट की अगर बात करते हैं तो कहता है कॉस्ट सिस्टम में जो भी इन्वॉल्व हुई थी, इनिशियल कॉस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, इनिशियल कॉस्ट को छोड़ दिया, जो पिछले 1 साल में सिस्टम की लगाने के बाद जो थोड़ा बहुत मेंटेनेंस और रिपेयर, अगर कहीं से कुछ आ जाता है, कोई नट बोल्ट ढीला हो गया, आंधी आ गई, आपने बुला के उसको उसको सिस्टम को सेटअप में ठीक करा दिया, या फिर आप उसको उसकी सफाई के लिए किसी वर्कर को रखते हैं, यदि आप रखते हैं तो जो कुछ भी कॉस्ट इन्वॉल्व है थोड़ी बहुत आपने उसको लिखा, आपने कहा कि ज़्यादा खर्च नहीं हुआ, 2,000 रुपये का हमारा पूरे साल में खर्च हुआ, एक बार हमको बुला के ठीक कराना पड़ा था, बाकी हमने सारा खुद से कर लिया। तो हम कह सकते हैं कि आपने 1,000 रुपये की पर मंथ की इलेक्ट्रिसिटी सेविंग करके एक पूरे साल में 12,000 रुपये को सेव किया, और आपने इसके मेंटेनेंस वाले पार्ट पे, कॉस्ट वाले पार्ट में पिछले 1 साल में केवल 2,000 रुपये खर्च करे। तो नेट बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, वो हो जाएगा 12,000 माइनस 2,000 एंड इट विल कम आउट एज 10,000 रुपीज़। उसको हमने जनरलाइज फॉर्म में यहाँ कैसे लिखा हुआ है, A1 इज इक्वल टू B1 माइनस C1। for in case of our example, B1 is 12,000, C1 is 2,000, and A1 will become as the 10,000 rupees। Similarly, after the completion of the second year, we will consider the duration of 1 year, start from the second year, start from the first year completion and up to the second year end, second year start।
मतलब मेरे कहने का मतलब ये कि जब हमारा पहले फर्स्ट ईयर का हमने बेनिफिट और कॉस्ट को कंपेयर कर लिया, जब 1 साल का मिल गया तो जब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ तो हमने फिर से नेक्स्ट 12 मंथ के लिए अगले 1 साल के ड्यूरेशन के लिए हमने अब देखा बेनिफिट और कॉस्ट के एनालिसिस को किया। तो बेनिफिट वाज द B2 एंड कॉस्ट वाज द C2 एंड द नेट बेनिफिट वाज द B2 माइनस C2. Now at the similarly for the end of the third year it will be A3 is equal to B3 minus C3. At the end of the life of the system the total benefit will be the AT and it will be shown by the BT minus of CT. तो इस तरह से हम यहाँ पर बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अभी हमने इसमें जो बेनिफिट कॉस्ट के जो टर्म्स को शो किया वो हमने ईयरली कंसीडर किया कि सिस्टम हमारा आज की डेट से स्टार्ट हुआ और इसको स्टार्ट होने के बाद अगले 12 महीने में सिस्टम ने जो बेनिफिट जो बिल की सेविंग करी उसको B1 शो कर दिया, जो मेंटेनेंस रिक्वायर था थोड़ा बहुत उसको हमने C1 शो कर दिया और आगे बढ़ गए। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर जो सोलर के पार्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सोलर की इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होती है, उसको हमने अभी कंसिडर नहीं किया। The initial cost of the system, the capital cost of the system is not considered in this cash flow diagram till now. तो अब उस कॉस्ट को हम कहाँ पे शो करेंगे अगर हम बात करते हैं अपने सिस्टम की इनिशियल कॉस्ट की। इनिशियल कॉस्ट मीन द सिस्टम जब इंस्टॉल हुआ, जब से स्टार्ट हुआ उस टाइम पर उस सिस्टम को लगाने के लिए इतना सच अमाउंट ऑफ मनी जो है वो पहले ही खर्च हो चुका है। तो जो इनिशियल कॉस्ट है उसको हम टाइम t इज इक्वल टू 0 पे शो करेंगे। मतलब सिस्टम ने अभी स्टार्ट हुआ है, आगे स्टार्ट होने वाला है, आप कहें कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे सिस्टम रेडी हो गया है आज से स्टार्ट होने के लिए। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है सारे कंपोनेंट्स को खरीदने का और सिस्टम को लगाने का वो सारा ऑलरेडी पहले से हमें अपनी पॉकेट से करना पड़ गया है। तो वो इसको हम शो करेंगे कॉस्ट वाले पार्ट में और कॉस्ट को हम शो करेंगे एट टाइम t इज इक्वल टू 0। सिस्टम के शुरू होने से पहले ही हमने इतना पैसा खर्च किया और इसको हम डेफिनेटली निगेटिव में करें क्योंकि हमने इनिशियल में सारा पैसा अपनी जेब से सिर्फ लगाया ही था। कुछ भी बेनिफिट हमको स्टार्टिंग में नहीं मिला था, वो आगे मिलना स्टार्ट हुआ तो उसको हमने कॉस्ट में और नेगेटिव में शो किया। अब हमें ये देखना होगा कि जो ये A1, A2, A3 जितने भी कंपोनेंट्स ये आ रहे हैं, अगर इन सारे कंपोनेंट्स को हम ऐड करें, मान लीजिए कि सिस्टम आपने लगाया 1 लाख रुपए का, ठीक है, और आप हमने जो एग्जांपल लिया हुआ था उसमें हमने देखा कि 1 साल में हमें बिल की सेविंग कितनी हो रही है, 10,000 रुपये की बिल सेविंग हो रही है एक इलेक्ट्रिसिटी बिल और कॉस्ट को कंसिडर करते हुए। तो 1,000 रुपये की बिल सेविंग तो आप बोलोगे आप अगर बोलोगे कि अगर आपको ये सिस्टम कहीं से फ्री मिल जाए, आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट ना करना हो, तब तो आपको ऐसा फील आएगा कि ठीक है अब हमारा तो 10,000 रुपये बन गया सिस्टम से। लेकिन यदि आपने 1 लाख रुपये अपने सिस्टम पे लगाया है, 1 साल के बाद जब आपने अपनी गणित लगाई तो आप बोलोगे उस 1 लाख में से अभी केवल 10,000 रुपये ही निकले हैं। जब 2 साल हो जाएंगे तो आप बोलोगे अभी सिर्फ 20,000 निकले हैं। जब 3 साल हो जाएंगे तो आप बोलोगे अभी सिर्फ 30,000 रुपये निकले हैं। 10 साल जब पूरे हो जाएंगे तो आप बोलोगे कि हमारे अब 10,000 रुपये, हमारे 1 लाख रुपये सिस्टम के निकल करके आ गए। 10 साल पूरे होने के बाद जो आगे बचे हुए 15 और 20 साल हैं कंसीडरिंग द लाइफ ऑफ द सिस्टम, तो आप बोलोगे वो आपके बेनिफिट वाले पार्ट में जाएंगे। वो आपको बेनिफिट मिलना स्टार्ट होगा 10 साल कंप्लीट होने के बाद। लेकिन अच्छा ये है कि सिस्टम की लाइफ इतनी ज़्यादा है कि उसके एक बार आपने उस टाइम तक आप पहुंच गए, 10 साल तक पहुंच गए, तो उसके बाद अगले 20 साल तक आपको सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगा। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारे सिस्टम का पे बैक टाइम कितना है, कब हमारा सिस्टम हमारे खर्च किए गए अमाउंट का पे बैक प्रोवाइड कर सकता है। So this part, this is the pictorial representation and named as the cash flow diagram. This is a very important for the economic analysis of any system, particularly in case of our solar system. इसको हमने यहाँ पे C0 का नाम दिया हुआ है इनिशियल इन्वेस्टमेंट को। नाउ कम टू ए केस स्टडी। यहाँ मैं आपके लिए एक केस स्टडी लेके आया हूँ, एक रियल पिक्चर जो है रियल केस स्टडी है और इसमें हमने कंसीडर किया है एक रूफ टॉप फोटोवोल्टाइक सिस्टम एक ऑफिस बिल्डिंग में लगा हुआ था और ये उसका स्पेसिफिकेशन है और इसकी हम इकोनॉमिक एनालिसिस करेंगे। जो फर्स्ट वाला पार्ट जो है यहाँ पे शो किया गया है आपको, इस वाले पार्ट में आपको एक सिस्टम के जो पैनल्स लगे हुए हैं रूफ टॉप के उनका स्पेसिफिकेशन दिया गया है। एक पैनल की जो रेटिंग है, पैनल इज रेटेड फॉर 30 panel is rated for 305 watt peak maximum power. The maximum power of the panel is 305. Open circuit voltage 44.9 volt. Maximum power voltage मतलब जो हमने कहा था कि voltage at maximum power point it is a 36.6.
पावर टॉलरेंस इज कितना है 8.73 एम्पियर, जो करंट को है उसको पावर टॉलरेंस के पार्ट में यहाँ पे शो किया गया है। एंड मैक्सिमम पावर करंट कितनी होगी 8.33। सोलर इंटेंसिटी स्टैंडर्ड कंडीशन पे 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन पे इसका डायमेंशन दे दिया गया और मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज दे दिया गया। जो हमने कल की क्लास में मॉड्यूल के स्पेसिफिकेशन को रीड करना सीखा था, उसी के बेसिस पे एक मॉड्यूल जो पूरा सिस्टम लगा हुआ है रूफ टॉप पे 25 किलोवाट का सिस्टम लगा हुआ है, उसके एक पैनल की जो रेटिंग है उस रेटिंग को यहाँ पे लिख दिया गया कि ये सिस्टम की रेटिंग है। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ पैनल्स। तो कहता है इस एक रेटिंग के हमें नंबर ऑफ 84 पैनल्स की रिक्वायरमेंट हुई, जिससे कि हमारा सिस्टम जो है वो 25 किलोवाट पीक तक की पावर को प्रोड्यूस कर पाए। 25 किलोवाट पीक की पावर प्रोड्यूस करने के लिए इन्वर्टर की रेटिंग कितनी लगाई गई 30 केवीए का इन्वर्टर लगाया गया। थोड़ा सा ओवर साइज करके लगाते हैं, जिससे कभी अगर ओवर करंट की बात आए तो हमारा इन्वर्टर जो है उसमें हीटिंग की वजह से बर्न ना हो जाए, उसकी कैपेसिटी थोड़ी सी ज़्यादा लेके चलते हैं। रूफ टॉप का एरिया डेफिनेटली रिक्वायर्ड जो होगा वो 275 मीटर स्क्वायर। और उसके बाद एनुअल यूनिट जनरेशन जो है वो 31,700 किलोवाट आवर ये कंपनी ने क्लेम किया। और बाकी अदर पैरामीटर्स जो सिस्टम के साथ इन्वॉल्व हैं उनको हमने शो कर दिया। एंड लास्ट में क्योंकि हम इकोनॉमिक के पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं तो लास्ट पार्ट शो करता है कि द कॉस्ट ऑफ द सिस्टम इज 18,75,000 रुपीज़। 18,75,000 रुपये का सिस्टम लगाया गया, जो कि 25 किलोवाट पीक के लिए रेटेड है। 25 किलोवाट पीक पावर प्रोड्यूस कर सकता है। नंबर ऑफ पैनल्स उसके 84 हैं और एक पैनल की स्पेसिफिकेशन को यहाँ पर दे दिया गया है। अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि सिस्टम की इकोनॉमिक्स कैसे इन्वॉल्व है। नाउ कहता है कि हमने सिस्टम की लाइफ ऑल दो 30 ईयर है, लेकिन मैंने यहाँ पे 20 ईयर तक शो किया है, क्योंकि अदरवाइज वो पिक्चर क्लियर नहीं होता आपको स्क्रीन पे देखने में, इसलिए मैंने 1 to 20 ईयर लिया है। और जो भी प्रोसीजर हम यहाँ फॉलो करेंगे, फॉलोइंग दैट प्रोसीजर यू कैन डू द फर्दर कैलकुलेशन फॉर द 30 ईयर ऑफ द सिस्टम। तो ईयर नंबर 1, ईयर नंबर 2, ईयर नंबर 3, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सारे ईयर्स को यहाँ पे हमने यहाँ पे रोज में 1, 2, 3 से शो कर दिया। नाउ कहता है कि ये है किलोवाट आवर जनरेशन या फिर यूनिट जनरेशन, मतलब कितनी एनर्जी हमारे सिस्टम ने बनाई उसको हमने यहाँ पे लिखा, उसको हमने नाम दिया यूनिट। एक यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर या फिर 1000 वाट आवर। ये हमने जब कैलकुलेशन पार्ट देखा था सोलर में, लोड कैलकुलेशन वगैरह, तो वहाँ पर हमने इस वाले पार्ट को देखा था कि यूनिट जनरेशन कैसे होता है, सारे टर्म्स को हम समझे थे। तो जब एक साल कंप्लीट हुआ हमारे सिस्टम का, तो उस एक साल में हमारे सोलर सिस्टम ने कितनी एनर्जी बनाई? 31,320 यूनिट की एनर्जी सिस्टम ने बनाई। हमने मेज़र कैसे किया? सिस्टम का जो आउटपुट है, पूरा सिस्टम सोलर पैनल, इन्वर्टर, उसके बाद जो आउटपुट वायर्स निकल के आए, हमने वहाँ पे मीटर लगा दिया। बल्कि हम कह सकते हैं कि जैसे कल के ऑनलाइन विजिट में देखा था, हमने वहाँ पर सेंसिंग डिवाइसेस लगा रखी हैं, कुछ डिवाइसेस जो कि मीटर लगा रखे हैं सीटीपीटी की हेल्प से, और वो डिस्प्ले पे दिखाते रहते हैं कि हमारा कितना यूनिट जनरेशन हो रहा है। और बल्कि एडवांस सिस्टम में वो हमारे पास लैपटॉप पे या मोबाइल पे हम लॉगिन करें तो डेटा आता रहता है कि पर डे के हिसाब से कितना यूनिट जनरेट हुई और एक साल में कितना यूनिट जनरेट हुई। तो उसके लिए आपको कोई बहुत परेशान होने या बॉदर करने की बात नहीं है, ये सिस्टम के साथ इन्वॉल्व होकर के आता है और आप देख सकते हैं। तो हमने जो सिस्टम लगाया, उस सिस्टम का डेटा हम कंटिन्यूसली कलेक्ट करते जा रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर की हेल्प से, और हमको मिला कि फर्स्ट ईयर में, ये पहले साल में 31,320 यूनिट बना। सेकंड ईयर में इसने 30,380.4 यूनिट बनाई। थर्ड ईयर में 30,167.7 यूनिट्स बनाई। जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ रही सिस्टम की, वैसे वैसे यूनिट जनरेशन कम हो रहा है। डेफिनेटली सिस्टम की में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती हैं। उसके बाद ये यूनिट जनरेट जो हुई वो 29,956.6 किलोवाट आवर यूनिट, इस तरह से यूनिट जनरेशन हमारे सिस्टम का स्टार्ट हुआ। हमने उसको कैलकुलेशन 20 ईयर तक किया, मीटर से जो रीडिंग आई थी उसको हमने लिख लिया। नाउ अब हमने कहा कि अगर हमारे अगर ये सिस्टम दिल्ली एनसीआर में लगा हुआ है और यूनिट कॉस्ट जो है उसकी 8.4 रुपीज़, जब का ये कैलकुलेशन है तब वहाँ पर यूनिट कॉस्ट जो दिल्ली की थी कॉमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए वो 8.4 रुपीज़ थी। और हमें पता है कि बिल की कॉस्ट हर साल कुछ ना कुछ बढ़ती है। तो कंसीडरिंग दैट पॉइंट इन आर व्यू, हमने एक एस्केलेशन लिया कि हमारी यूनिट कॉस्ट कुछ बढ़ रही है। यूनिट कॉस्ट में अगर आप बोलें कि एक यूनिट के लिए हमको 8 रुपये 40 पैसे पे करने हैं, 2 यूनिट खर्च करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 8.4 रुपये हमको पे करने पड़ेंगे। तो ये हो गई यूनिट कॉस्ट। तो यूनिट कॉस्ट हो गई रुपीज़ पर किलोवाट आवर। तो 8.4 रुपीज़
हमारे पास तब था जब सिस्टम इन्वॉल्व हुआ था। उसके बाद बिल थोड़ा सा बढ़ा तो वो बढ़ के 8.568 हो गया। उसके बाद थर्ड ईयर में बिल थोड़े से और बढ़े तो पर यूनिट के लिए कितना हो गया, 8.739 हो गया। फोर्थ ईयर में ये बढ़ करके 8.9 हो गया। तो कंटिन्यूसली आप देख रहे हैं कि बिल जो है वो कुछ ना कुछ 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 बढ़ता जा रहा है और सिस्टम का आउटपुट कुछ कुछ कम होता रहा है। हमने ये कैलकुलेशन जो है 20 ईयर्स के लिए किया। नाउ कहता है कि बेनिफिट, अब अगर बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पर आपको पता चला, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। यहाँ पर आपको पता चला, ये आपके पास है किलोवाट आवर यूनिट जनरेशन और ये है रुपीज़ पर किलोवाट आवर। मतलब ये कितना यूनिट बनाया वो बता रहा है। कितना पहले साल में इसने बनाया 31,320 यूनिट और एक यूनिट का जो पैसा है वो 8.4 रुपये है। तो इसका मतलब हमने जो सोलर से प्रोड्यूस किया इतना पैसा हमने सोलर से खुद प्रोड्यूस कर लिया, हमें ग्रिड से ख़रीदना नहीं पड़ा। तो इतने पैसे की हमने सेविंग कर ली। तो कैसे निकलेगी वो सेविंग, 31,320 रुपये, 320 किलोवाट आवर की एनर्जी बनी और 8.4 रुपये के हिसाब से अगर कैलकुलेट करें दोनों को मल्टीप्लाई करके तो वो आता है कि कितना, 2,63,088 रुपये, 2,63,088 की सेविंग हुई। कंसीडरिंग द सेकेंड, चलिए इधर आते हैं। मान लिया हम सेवन्थ ईयर की बात करते हैं, मैंने सेवन्थ ईयर कंसिडर किया। ऑन द सेवन्थ ईयर व्हाट हैपेंस, 29,331.8 यूनिट्स का जनरेशन हुआ हमारे सिस्टम ने, हमारे सोलर सिस्टम ने 29,331.8 यूनिट बनाई और एक यूनिट का जो प्राइस था वो 9.46 रुपये था, एक यूनिट का प्राइस। तो हमें सेविंग कितनी मिली, तो टोटल सेविंग मिली, इन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया, एक यूनिट के लिए 9.4 रुपये, इसलिए 29,331 यूनिट के लिए कितना हो जाएगा, हमने इसको मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट कितना मिल गया, 27,74,000 सॉरी 2,77,471 रुपीज़, इतना हमें बिल मिला। तो इतना हमें बिल की सेविंग मिली। आई थिंक आपको ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। छोटा सा एग्जांपल लेके बता देता हूँ कि ऐसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि आपने सोलर सिस्टम लगाया, आपके घर के बिल जो है वो कितना है, 10 रुपये के, आपसे छोटा सा एग्जांपल, 10 रुपये आपका पर यूनिट है। आपके सोलर सिस्टम ने 2 यूनिट बनाया, तो 2 यूनिट आपने सोलर सिस्टम से बना लिया तो आपको वो ग्रिड को नहीं पे करना पड़ेगा। तो एक यूनिट की कॉस्ट 10 रुपये, तो दो कितनी जाएगी, 20 रुपये। तो 20 रुपये आपके सिस्टम ने सेविंग करी। तो उस पार्ट पर हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं। नाउ कहता है कि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होगी सिस्टम की। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट हमने फिक्स ले ली है, जिसको हमने कहा कि सिस्टम का जो इंस्टॉलेशन था उसका एक समथिंग परसेंटेज करके निकाल दिया जाता है। जैसे टोटल कॉस्ट हमारे सिस्टम की जो है वो अगर 18 लाख का लगा था तो उसका समथिंग कुछ परसेंट हमने कहा कि ऑपरेशन मेंटेनेंस हमें इतना हर सिस्टम में लगेगा, जो जिसको हमने ईयरली कहा था बेनिफिट कॉस्ट वाले C1 C2 वाले पार्ट पे। तो इसमें हमने कंसिडर किया है 4,675 रुपये। ये कंपनी बोलती कि इतना आपका मेंटेनेंस और कॉस्ट जो है आपको हर साल लगने वाली है, तो हमने हर जगह उसी कॉस्ट को यहाँ पर ऑपरेशन मेंटेनेंस कॉस्ट को यहाँ पर हमने कंसिडर किया। अब हम देखेंगे नेट बेनिफिट क्या हो रहा है। जब फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, ऑन द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ईयर, ठीक है, जब सिस्टम का फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ उस कंडीशन में आपने देखा कि आपके पास जो बेनिफिट आ रहे थे वो बेनिफिट आ रहे थे 2,63,000, सॉरी बेनिफिट आपके पास आ रहे थे 26 लाख, 2,63,088 रुपीज़, 2,63,088 रुपीज़ का आपको सेविंग मिला आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर। और आपका जो कॉस्टिंग इन्वॉल्व हुई उसमें जो खर्चा हुआ वो केवल 46,875 रुपीज़ हुआ। जब आपने यहाँ पर सेविंग निकाला, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आपने निकाल लिया सेविंग, तो सेविंग कितना आता है, 1,66,213 रुपीज़। ऐसे ही अगर आप सेकेंड ईयर की बात करेंगे तो सेकेंड ईयर जब कंप्लीट हुआ तो आपके पास बेनिफिट वाला जो पार्ट निकल करके आया वो बेनिफिट कितने निकल के आए, 2,60,299 रुपये के बेनिफिट निकल के आए। और जो कॉस्टिंग इन्वॉल्व थी वो कितनी इन्वॉल्व थी, 46,875 रुपये, 46,875 रुपये यहाँ पर इन्वॉल्व थे उसके
कॉस्ट वाले पार्ट पे। तो नेट नेट जो सेविंग निकल कर के आई वो हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया और सब्ट्रैक्ट करके रिजल्ट निकल के आया 21,34,03,424 की यहाँ पे आपको क्या मिल गया है सेविंग। तो इस तरह से हमने एक कैलकुलेशन किया, मतलब बेनिफिट कैलकुलेट करे, कॉस्ट कैलकुलेट किया और यहाँ पे कैलकुलेट करके सेविंग निकाल लिया। ओके, कम टू द सेविंग एंड पे बैक कैलकुलेशन। जब एक साल कंप्लीट हुआ, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर व्हाट हैपेंस, आपको सेविंग मिलती है। कितनी सेविंग मिलती है? जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको सेविंग मिल रहा है 21,06,213 रुपये की सेविंग आपको एक साल के बाद में। जब 2 साल कंप्लीट हुए तो आपको 21,06,213 पहले साल से मिले और 21,03,424 रुपये की सेविंग आपको सेकेंड ईयर में मिली। आपने इन दोनों को ऐड कर दिया तो आपको नेट सेविंग यहाँ पे मिल जाती है। कितनी मिलती है? 42,09,637 रुपये की सेविंग। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ थर्ड ईयर व्हाट यू सी, जब थर्ड ईयर कंप्लीट हुआ तो पहले साल की सेविंग आपने यहाँ पे कंसिडर करी जो मिली थी, सेकेंड ईयर की सेविंग, थर्ड ईयर की सेविंग, सबको आपने ऐड कर दिया और रिजल्ट यहाँ पे कितना मिल गया? इतना मिल गया 6 लाख। इस तरह से कंप्लीशन ऑफ फोर्थ ईयर में पिछले 4 साल की सेविंग और ऑन द कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर, 6 ईयर, 7 ईयर, 8 ईयर, 9 ईयर। जब 9th ईयर में पहुँचे और हमने 9th ईयर में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8 और 9 साल की जितनी भी हमें हमारे पास बेनिफिट मिल कर के आए थे, नेट बेनिफिट, जब हमने उन सबको ऐड किया तो रिजल्ट कितना निकल के आता है? कहता है कि हमें रिजल्ट निकल के आया 20,19,786 की सेविंग हमारे सिस्टम की हो गई जब 9 साल पूरे हो गए। नेट सेविंग जो हमें मिली 20,19,786 की मिल गई। और हमारे सिस्टम की जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कितनी थी? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, हमारा सिस्टम जो है उसको जब लगाया गया था तो 18 लाख रुपए का सिस्टम लगाया गया था। इट मीन्स हमारा सिस्टम जब 9 साल हो जाएंगे या फिर हम कह सकते हैं कि 8 साल पूरे होने के थोड़े कुछ मंथ के बाद ही हमारा सिस्टम जो है अपनी कॉस्ट को रिकवर कर लेगा। करीब करीब 8 साल में जब 17 लाख यहाँ पर आ गया अमाउंट हमारे पास, 18 लाख कीमत है सिस्टम की, तो 8 साल कुछ मंथ में हमारा सिस्टम उस कॉस्ट को रिकवर कर लेगा जो उसको बनाने में लगाई गई थी। और 8 साल के बाद अगर 30 साल तक देखें तो 30 - 8 22 ईयर, नेक्स्ट 22 ईयर्स तक जो सेविंग मिलेगी हमारे सिस्टम से वो सारा हमारे पॉकेट में जाएगा। तो बताना ये चाहते हैं कि हमारा जो सोलर सिस्टम है उसकी इनिशियल कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसकी जो रनिंग कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो बहुत कम है और लाइफ हाई होने की वजह से हमें सिस्टम को इंस्टॉल करने से बेनिफिट ही बेनिफिट मिलता है। ये सिस्टम हमारे लिए एक इकोनॉमिकल सिस्टम है। सिस्टम को हमें यूज़ करना चाहिए, लगाना चाहिए। तो अभी हमने ये पार्ट कंप्लीट कर लिया कि हमारा सोलर सिस्टम जो है वो की इकोनॉमिक्स किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, पे बैक किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है और सिस्टम हमारा इकोनॉमिक सिस्टम होता है। इस बात को हमने यहाँ पर प्रूव किया। So this was the economics involved in a solar system. This was the very basic of the economics which are involved in our solar system. We started from the benefit, cost, cash flow diagram. It means the benefit cost analysis. Then I have taken an example that the benefit of the system will be how the benefit of system will be calculated by using the unit prices and by multiplying the unit prices with the energy saving due to the installation of the solar system, and the involved cost, how the net benefit will be calculated, then how the these benefit will be used for the calculation of the payback period. In our case study, the payback period comes out as the 8 year something months, and in general cases where we see that the payback of system lies between the 7 year to 9 years, in between 7 to 9 years, and the life of system is considered in between the 27 to 30 years. So it means we can say that our system is a economical system. Our system can be installed at the rooftop or building, in whether in case of the autonomous solar plant or or in a case of the grid connected solar plant, whatever is feasible for your case. So after completion of this class, after completion of this course, I will suggest you to do the calculation of the whatever the first calculate the load of the system, then according to that load calculate the number of panels and accessories required for the system, and then do the benefit cost analysis, means the payback analysis of the system. So this will be considered as a complete project of your solar system. So with these terms, with these point, I would like to end my lecture. Thank you so much.